السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ بہت بڑی بات اللہ کرنا ہے. حضرت اللہ فضل. کون ایک کون بول رہا ہے؟ یہ مسئلہ پھنس گیا ہے. اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں. اچھا، کرناٹک سے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آپ نے پہچان لیا حضرت کیا؟ جی 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 جی. ماشاء اللہ حضرت. شیخ صاحب کو کون نہیں پہچانے گا. حضرت صاحب ماشاء اللہ آپ کی بہت بڑی بات ہے. آپ کی ذرا نوازی صاحب ہیں. ہاں، اللہ سلامت رکھے آپ کو. تھوڑا سا چکر پڑ گیا کہ میں نے یہ اجازت دے دی تھی جو حج کرنے جا رہے تھے نا. جی. تو ہم مرید بھی گئے تھے تو میں نے کہا کہ جو وہاں پر جائیں تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں. مسجد نبوی کے امام اور کعبے کے امام کے پیچھے. دعوت اسلامی والے بہت زیادہ میرے مخالف ہیں. یہ ماں کے امام کو مسلمان نہیں مانتے ہیں. تو میں کیا کروں صاحب؟ میں بیچ میں پھنس گیا کہ نہیں. اب مجھے نکالیے آپ. اس میں ایسا ہے، کسی بڑے ادارے کے شعبے افتاء کے صدر مفتی سے آپ رابطہ کریں. ہاں ویسے میں بیچ میں ان کی بات مدلل ہوگی، اور جب ان کا وائس یا ریکارڈنگ یا تحریر اگر آپ شائع کریں گے تو لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. ہاں یہ بہت اچھی. یہ دعوت اسلامی والے کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. مجھے ان سے وہ ان کی پرانی عادت ہے. اب پرانی عادت. اب بال مبارک کے بٹوا دیے اس نے الیاس نے صاحب. الیاس قاضی نے اپنے بال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بال مبارک کے بٹوا دیا. ہاں خبر ملی، مجھے بھی ملی ہے. میں نے بھی جو ہے میری نظر کے سامنے گزرا ہے. گستاخی ہے. اور علامہ اس پہ علامہ قموز زماں اعظمی صاحب لندن والے جو ہیں، انگلینڈ والے، انہوں نے زبردست ان کا رد فرمایا. بہت زبردست کیا صاحب. پوری کائنات میں صرف اور صرف اگر کسی کے بال کے تقدس کا خیال رکھا جائے گا تو وہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ہاں نہیں تو پھر تخصیص ہی نہیں رہے گی. ایسے جس کا چاہے زیارت کرائیں گے تو. ہاں تو یہ غلط کیا ہے. تو کہہ رہا ہوں کہ اناف شناف یہ دعوت اسلامی والے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے. حضرت یہ عالموں کی قدر نہیں کرتے. پہلے تو قدر کرتے ہیں تک کام لینا ہوتا ہے. جیسے کام نکل جاتا ہے تو عالموں کو ایکسائٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ ان کی جماعت میں اکثر جاہل کی قوم ہے. ارے جاہل کی بالکل حضرت. اونچی بات کی آپ نے. ہاں، گھاس چھلنے والے کو پگڑی باندھ دیا، بنا دیا عالم. بس اسے پیسہ حضرت پیسہ بھی تو دے رہے ہیں. جی جی جی. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ سنا ہے کہ 50,000. اس لیے میرا مشورہ ہے آپ سے کہ کسی بڑے ادارے کے شعبے افتاء کے آپ کسی صدر مفتی سے رابطہ کریں. بات دعوت اسلامی والوں کی اس لیے کہ یہ خود وہاں رہتے ہیں مدینہ شریف میں، جانے کہاں رہتے ہیں. یہ خود پڑھتے ہیں سب جگہ نماز. یہ اگر مجبوراً اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے، اعلیٰ حضرت کو مجبوراً مانتے ہیں صاحب، پیٹ کے لیے مانتے ہیں. میری بات سنیے. یہ تحریک جو دعوت اسلامی والی ہے، یہ تحریک جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے. نہیں ہے، قابل اعتبار بھی نہیں ہے. ارے کیا بات ہے حضرت، کیا جملے آپ کے جملے ہیں. سرکار تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان نے بھی جو ہے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس قوم اس جماعت سے دور رہو. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. میں اس کو انشاءاللہ عوام تک پہنچا دوں گا. آپ جو جملے بیان فرما رہے ہیں اظہری میں صاحب کے حوالے سے، تاکہ عوام بھی سنیں ان باتوں کو کہ اظہری میں صاحب نے ان کا سخت رد کیا ہے. سرکار تاج الشریعہ نے کبھی اتفاق نہیں کیا اس جماعت. ارے انہوں نے تو یہ تک بتایا، میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے چینل سے مدنی چینل سے اللہ کے رسول کی آواز تک سنوائی ہے. یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مدنی چینل سے آواز آئی. بہت خرافات ہے. آپ اس کو اٹھا کے مت دیکھیے. آپ دیکھیں گے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کی غلطیاں ہیں سامنے. ہاں صاحب بالکل. یہ علماء کیوں برداشت کر رہے ہیں ہمارے بریلی کے اور یہ مسولی کے اور یہ ہمارے شریف کے؟ نہیں برداشت نہیں. عالم ہمارے علماء برداشت نہیں کر رہے ہیں، رد کرتے ہیں. اور یہ بھی قوم سے کہتے ہیں کہ تم ان سے دوری اختیار کرو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلے پر ہو تو چلو ہم اس کو رد کر دیں. یہ سوچے اٹھتے بیٹھتے غلطی کر رہا. ابھی تو پوری تحریک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. یہ کہا صحیح آپ نے. ہلکا بھی غلطی کر دیتے پھر توبہ کر لیتے ہیں صاحب. ہاں بڑے بدے مزاج قسم کے لوگ، یعنی کبھی بھی غلطی کر کے ایک دم توبہ کا ناٹک کر لیتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا. ایسے تو تم جو چاہو کرو. ہاں یہ توبہ کرنا باپ کی گھر کی کھیتی سمجھ گیا ہے. نہیں یہ ایک ناٹک بنا رکھا ہے کہ صاحب غلطی کر لی، توبہ کر لیا، رجوع کر لیا صاحب. جی جی جی. ابھی اس نے ایک آپ فیضان سنت ہوگی حضرت تو آپ پڑھنا.
मैं हाँ है फैजान सुमन बता। सफर 27 जो पुराना एडिशन कलकत्ता से बम्बई से छपा है, उसमें सफर 27, एक और एडिशन में सफर 44 में है जो बाद में बदल जाता है, न जाने कितने बार छपी है। उसमें लिखा है कि एक बार लांडी के कब्रिस्तान में इज्तिमा हुआ तो एक आदमी इलियास काजी के नहीं आने पर थोड़ी देर हो गई थी तो उठ के आ गया। तो जब वो सोया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, कल लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबको बख्श दिया गया, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। ये गुमराह आदमी है। अब बताओ ये कितनी बड़ी तौहीन कर रहा है। मैं एक मिसाल दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हजरत मौला अली शेर खुदा के हवाले से, या अली तेरी जात ऐसी है कि तेरे दो तबके मानने वाले होंगे। एक इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो जो है हद से ज्यादा तजावुज करके वो जो है मुनाफिकीन और मुशरिकीन में शामिल हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग इतना तुमसे तनकीज करेंगे कि उस पर वो भी तुमसे जो है दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ ऐसा हो रहा है ना। शिया हजरात, शिया देखिए कितनी तारीफ करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मौला अली सरकार को जो है खारजी लोग कितनी बुराई करते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी तो हजरत 26 में इसकी मनाई है। बेआईनी सुनिए, बेआईनी ही दावत इस्लामी वाली जो तहरीक है, ये तहरीक जो है सरकार की मोहब्बत में इतना मतलब दिखावे की बात करते हैं कि ये हद से ज्यादा गुजर जाते हैं। अरे वो हर आम बंदों की एक लिमिट है, एक हद है, उससे आपको तजावुज नहीं करना है किसी सूरत में। कुरान में है ना, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। हद मुतय्यना रब ने फरमाया है, सबकी अपनी अपनी हद है। हाँ हाँ। अरे आप वलियों में देखें, तमाम वलियों की तरह नहीं है। क्या बात, तमाम नबियों की तरह ही है। बयान फरमा रहे हैं आज तो आप। तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद। ये तो रसूल फरमाता है कि मैंने बाद रसूलों में बास को फौकियत दी है, फजीलत दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर नबी दूसरे नबी की तरह नहीं, क्या हर पैगंबर दूसरे पैगंबर की तरह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हर वली दूसरे वली की तरह नहीं। अरे सबके मकाम को अल्लाह ने मखसूस फरमा दिया है, सबके दर्जात को बुलंद किया है। अब हजरत ये बताइए कि सफर 27 में लिखा है कि जितने लोग इज्तिमा में सबकी मग़फ़िरत, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी मग़फ़िरत नहीं हो रही। इससे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी हजरत। अब ये क्या कहते हैं कि वहाँ अल्लाह रसूल की बात हो रही थी तो उस पर वादा मग़फ़िरत है, तो जो उठ के आ गया उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। तो अरे भाई उसे अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है, ये भी तो देख उसकी मग़फ़िरत नहीं हो रही। बेवकूफ आदमी है। और क्या उठ के एक ही आदमी आएगा उसके इज्तिमा से, उठ के आप भी आगे। हमारे सुन्नी हनफी बरेलवियत के तमाम आलिमों का इत्तफाक रहा इस बात पर है कि दावत इस्लामी से दूरी इख्तियार करो, दूर रहो, क्योंकि ये फितना परवर ये तहरीक है। ये कब बोलते हैं क्या बोलेंगे खुद नहीं समझते हैं। अच्छा हजरत, ये आला हजरत का एक बहाना लेते हैं, क्या करते हैं कि हम आला हजरत को मानते हैं, एक एक बात, क्या नाटक है क्या ये सब। उसकी वजह ये है कि बाज उलमाए कराम पूरी जिंदगी जो है तालीम हासिल किया मसलके बरेलियत के हिसाब से, ठीक है। आप बाद में जो है किसी तहरीक से जुड़ गए, ये दावत इस्लामी वाले से जुड़ गए, तो अब वही लोग कहते हैं कि मैं आला हजरत को मानता हूँ। अच्छा, वो लोग ये नहीं कहते, उनको देख के और भी लोग कहते होंगे। नहीं, ये तो एक नहीं ढोंग तो रखते हैं दावत इस्लामी वाले हालत के मानने का। ढोंगी तहरीकी हजरत, नहीं ढोंगी तहरीकी है। इन्हें चंदा कैसे मिलेगा, ज़कात सदक़े खैरात है। हाँ। अच्छा, एक मकाम पर मैं आपको कुछ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा आप मेरी तस्दीक करें या सोच समझ के। मैंने सोचा है कि मंजर इस्लाम के भी आलिम फारिग पूरी दुनिया में, आप तो जानते हैं ये पढ़ी हैं, और अशरफिया के फारिग भी पूरी दुनिया में, हाफिज मिल्लत के मानने वाले पूरी दुनिया में, और फारिग भी पूरी दुनिया में। अच्छा ये बताइए हजरत, क्या हाफिज मिल्लत के इदारा अशरफिया की क्या ब्रांचें खाली यूपी में ही हैं, हर जगह के क्या है, हर जगह पूरे यूपी में बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं क्या? नहीं मिलेंगी आपको, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगी, हर जगह ब्रांचें। और दावत इस्लामी की ब्रांचें हजरत ऑल वर्ल्ड में कैसे है? सही है। उसकी मिलती है, उसकी वजह है ना कि जो है जाहिलों को पकड़ के वहाँ बांध दिया। नहीं हजरत ये मतलब आलिम की सब खड़ा कर दिया। नहीं, ये समझना चाहता हूँ कि इतना चंदा इनका कैसे हो रहा है। डिब्बों से तो इतना चंदा नहीं हो पाएगा, ये एक मैं समझता हूँ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का तरीका है, हो सकता है, क्योंकि डिब्बों से इतना चंदा, आप भी जानते हैं, आप भी नजर रखते हैं, एक मस्जिद बनती है जब लखनऊ में, कानपुर में कितने साल लग जाते हैं।
जी हालत खराब हो जाती है हजरत, तो हालत ये खराब हो पूरी जाती है दुनिया बनवाने में कैसे ब्रांचें बना रहे हैं, इसका अंडरग्राउंड इनका ताल्लुक या तो अमेरिका या अफ्रीका, विदेशों से है साहब इनका मामला बहुत। विदेशों से ताल्लुकात इनके मजबूत हैं ही। नहीं, विदेशों से एजेंसियां इनको बहुत लंबा लंबा पैसा दे रही हैं साहब। हाँ हाँ। अब 10 लाख इसके मुबल्लिग हैं हजरत इलियास काजी के, कम भी 10 लाख, 10 लाख की तनख्वाह, जी, जी। 50,000 जो बड़े मुबल्लिग हों उनकी और ज्यादा, छोटे की 15 से शुरू होती है, 15 से। तो 50,000 इतनी तनख्वाह हजरत कहाँ से आएगी जब मंजर इस्लाम वाले नहीं कर पाते इतना पैसा। अल जामियातुल रज़ा जी। अज़हरी में के कितने मुरीद थे, पूरी दुनिया में मुरीद है, वो इतना वो भी हर जगह शाखें नहीं कायम कर पाए, सिर्फ मथुरापुरी में मदरसा बनाया बस। तो असल में ये सरकार ताजुल शरिया का या और दिगर जो आलिम होंगे ना, आलिम, हाँ आलिम का मिजाज होगा आलिमाना अंदाज में हम काम करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, जाहिलाना अंदाज में नहीं करेंगे। अब ये सुना है कि अल्लामा अरशद क़ाज़ी साहब ने भी शायद इनसे कुछ बेदारी हाँ। इख्तियार अब की। आखिरी वक्त में जो है नाराजगी का इजहार किया। अच्छा, इनकी हरकतें देख के। जी जी जी। जब तो इतनी हरकतें भी नहीं थी साहब, उनके जमाने में तो इतनी हरकतें भी नहीं आई जिनकी सामने। तो सरकार अल्लामा अरशदुल क़ाज़ी मौजूद थे ना, नहीं तो कैसे करते थे? नहीं, हाँ मौजूद थे, ये वजह थी, नहीं तो अब तो जो हरकतें सामने आ गई इस पर तो एक मेरे सामने ऑडियो नहीं तहरीर आई थी जी साहब, पाकिस्तान से जो है किसी ने जो है शाया किया था जी। तो वहाँ अल्लामा अरशदुल क़ाज़ी जब गए थे तो बहुत बड़े आलिम दीन थे वो। तो ये इसको इलियास अत्तर कादरी को जो बनाया गया था एक में, अहमद तो पूरा शिजरा उन्होंने बयान किया। हाँ हाँ, पूरा बताया उन्होंने कि ये आदमी कैसा था, फिर ये कैसा किया, इसको मौका मिला क्या किया नहीं, कि सारी बातें खोल के रख दिया था उन्होंने। मजमून मेरे ज़हन में नहीं है। नहीं सही बात है। वो गए थे, ये अजमल साहब, पीर अजमल साहब गए थे, कछोटा शरीफ वाले हजरत पीर अजमल साहब। अच्छा। इन्होंने भी बताया। और बम्बई में जब ये आया था ना 1990 में लगभग शुरू में, तो सरताज बम्बई मुफस्सिर आज़म हिंद हजरत काजी ज़हीर खान साहब ने इसके खिलाफ मीटिंग लेके सुन्नी दारुल इस्लामी बनाई थी जकरिया मस्जिद में जी। वो 165 इमाम जमा किए थे। मैं गया था ना बम्बई, तो मुझे मालूम हुआ था, उन्होंने ही बताया माहिरुल काजी साहब ने। ये सुन्नी दारुल इस्लामी वाले भी तो जो है उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं, मगर ये इतने ख्वाब बयान नहीं करते, न ऐसी करामतें बताते शाकिर। हाँ ये है कि इतनी बड़ी गलती नहीं करते हैं, इतना बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, ना ऐसे गुनगाते, ना शाकिर रज़वी साहब का नाम भी नहीं लेते साहब तकरीर में वो, और ना उनकी करामतें बयान करते। इस वक्त मालूम है हजरत इलियास काजी की होना यही चाहिए हजरत, ये होना यही चाहिए हजरत। इस वक्त मालूम है आपको करामतें कितनी इलियास काजी की, बताऊं आपको? 2 लाख कमबेश 75,000 70,000 के कमबेश इसकी करामतें हैं, 2,70,000 के आसपास कमबेश। अच्छा अच्छा। यानी बात में करामत हो रही है। अब तो अगर आप इसके पास बैठ गए तो करामत, अगर आपके हाथ रख दिया तो करामत। जी जी जी। यानी करामतों का खजाना है इलियास कादरी। यहाँ तक कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की भी इतनी करामतें किताबों में नहीं मिलेंगी जितनी इलियास कादरी की मिलेंगी। अब अभी तो जिंदा है, अभी इतनी हो गई। मैं थोड़ा बाहर हूँ। हाँ, तो हजरत मैं बता दूंगा कि इनसे दूर रहा जाए दावत इस्लामी वालों से, ठीक है? हाँ। और बिल्कुल इनका बाइकाट किया जाए, ठीक है हजरत? हाँ, इनका बाइकाट करने के लिए तो बरेली शरीफ का जो आज का ऐलान थोड़ी ना, बहुत पुराना ऐलान है। और यही कहा जाए कि हजरत मियां साहब इनसे बाद में सख्त बेजार हुए, शुरू में नरमी बरती थी हजरत मियां ने, शुरू में क्या है, इनकी हरकतों को देख करके दूर रहने के लिए अपने मुरीदीन को और मुहिब्बीन को आपने फरमाया है। अरे साहब, इस सफ़ा 31 में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है इलियास कादरी ने। अब अगर ये कलमा भी दिए ख्वाब, तो क्या हुआ था, पहले से कलमा पढ़ना पड़ेगा ना जो लिखा है इसने। गुमराह है ये, गुमराह तहरीक है, गुमराह तहरीक है ना साहब। हाँ। और शेर गुजरात की किताब पढ़ी हजरत आपने? हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने इसके खिलाफ किताब लिख दी है, दावत इस्लामी। उनकी जबरदस्त है, उनकी सलाहियत है ना। कई मरतबा हम लोग जलसे में भी एक साथ थे। कहाँ पर? ये लखनऊ के ही इर्द गिर्द में। अरे हजरत वो जब जाएंगे ना तो बुलाया था। सुल्तानपुर में भी हम साथ में थे, पहली तकरीर मेरी हुई थी उसमें। जैसे शेर गुजरात है साहब, शेर गुजरात सुल्तानुल मुनाज़िरीन है आज के दौर के, उनको लक़ब देना चाहिए। इल्मों का पहाड़ है, इल्म का पचपहाड़ है साहब। उन्होंने किताब लिखी दरअसल खिलाफ कलमिया 350 सफ़हात पे। जी। अगर आप किताब तो बहुत लिखा उन्होंने,
तशरीफ का काम उन्होंने बहुत किया। नहीं, अगर आप कोशिश करें कि उर्स आला हजरत से बंटवा देना वो किताब, तो मैं भी उसमें हिस्सा ले लूंगा। 200-400 किताबों का पैसा मैं ही भिजवा सकता हूँ, मगर ये कि उर्स आला से ऐलान हो जाए कि ये किताब इस्लामी का अलमिया फ्री में बिटेगी फला जगह से, तो मैं भी हिस्सा लूंगा उसमें। 400-500 में जो भी होगा। हाँ साहब, हजरत इसने तो कितनी तौहीन अल्लाह के रसूल की है साहब इलियास काजी ने। जी, मैंने ये तक देखा है हजरत। अब मैं आखिरी बात फिर इंशाल्लाह बस खत्म। आखिरी बात, मैंने वो वीडियो देखी है क्लिप, इसके सामने एक आदमी कह रहा है हजरत कोई वादा खिलाफी करे तो क्या हुक्म है, कहा करना नहीं चाहिए, ये है वो है, ऐसा कह दो। फिर इसके सामने कहता है, और ये कुर्सी पे बैठा हजरत, अब आप सुनना बस 1 मिनट की बात, तो कहता है हजरत मैं मदीना शरीफ गया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा था कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, तो मुझसे देर हो गई बात। तो अब ये कुर्सी पे बैठा बैठा जवाब दे रहा। हजरत ये बताओ, मैं जब लखनऊ आऊँ और आपको मैं कहूँ कि आप कहो बैठिए, मैं कहूँगा बैठूंगा बाद में, पहले आप सुनो। मैं जबकि जो है वहाँ तुर्की के आखिरी जो बादशाह गुजरे, पीर, क्या गाना, शेख महमूद आसिफ जी, हमीद साहब थे, क्या नाम है उनका, शेख हमीद जैसे नाम था। हाँ, बहुत बड़े। तो हाँ, तो उनकी बारगाह में एक साइल आया, फकीर आया। तो परेशान था, तो आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आ करके तब फरमाया था कि हमीद से जाके कहना कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दर पे भेजा है, तुम दरूद रोज पढ़ते हो, एक दिन दरूद रह गया उसका मुआवजा देने के लिए। हाँ, ये अच्छे उसकी कीमत अदा करने के लिए। जैसे ही बंदा सुना कि सरकार मेरा नाम लिया है, बंदा कुर्सी छोड़ दिया। क्या बात है, इश्क देखिए, बंदा कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद का फिर दोबारा कहो, क्या कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, कहा कि हमीद को कहना, कहा दोबारा फिर कहो, देता रहा खजाना, देता रहा, कई दफा मुसलसल उनसे कहलवाया, बहुत कीमत नवाजा उनको। ये आपने बहुत अच्छा, इसका मकाम होता है। ये आपने बहुत अच्छा वाक़या सुना दिया इस मौके पर। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने आंखों से देखी है। आपसे हिंदुस्तान की बात लें, केशौछा वाले सैयद साहब जब जा रहे थे बरेली शरीफ के सामने से, ट्रेन से गुजर रहे थे, आला हजरत अपनी खानकाह में, खड़े हो गए। क्या बात है, आप जो है खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो है आप अदब के साथ जो है सर को झुका लिया, सिरे पे हाथ रख कर। जब ट्रेन वहां से निकल गई तब आप बैठे, मुरीदीन ने पूछा तो आपने फरमाया कि एक सैयद ज्यादा यहाँ से जा रहे हैं। बताइए, अदब था ये, उनके एहतराम के लिए आला खड़े हो गए। बताइए, ये तो औलाद का मामला है जो, और इसके सामने वो कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा। हजरत ये कुर्सी तो उठा तक नहीं है, बैठा बैठा कह रहा है बस इतना कह रहा है, इस पर कोई कैफियत भी तारी नहीं हो रही बिल्कुल। यानी इसने अल्लाह के रसूल की अजमत का मजाक बना के रख दिया था। चलिए फिर बात करेंगे। हजरत मैं यह बात पहुंचा दूंगा कि मुफ्ती लखनऊ फाजिल जली मुफ्ती मुश्ताक साहब ने कहा है कि अजहरी साहब ने से दूर रहने का बोला है। ठीक है ना? हाँ, मुफ्ती आजम लखनऊ हजरत खतीब हिंदुस्तान मुक़र्रिर शोलबान हजरत मुफ्ती मुश्ताक साहब ने कहा कि अजहरी ईमानैन को इससे दूर रहने का बोला है। जी, ये मैं जलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, ठीक इंशाल्लाह।